جس اولاد کی خاطر تو نے اپنی ساری زندگی داغ پہ لگا دی ہے، ان کا مستقبل بنانے کے چکروں میں تو نے دین نہیں سمجھا۔ ان مولویوں نے ہی ہمیں جدا کیا ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہو، آپ دنیا دار لوگ ہو، آپ نے دین سمجھا نہیں ہے، دین پڑھا نہیں ہے، قرآن مجید کو ترجم سے نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، آپ کو شریعت کے معاملے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ کو دکان کا پتہ ہے، کاروبار کا پتہ ہے، کھیتی باڑی آپ جانتے ہو، اور کچھ بھی نہیں جانتے۔ لیکن جو مولوی ہے، یہ جو مولوی ہے، اس نے 8 سال لگایا ہے مدرسے کے اندر، اس نے 10 سال لگائے ہیں، اس نے 12 سال، اور کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے۔ وہ مدرسے میں پڑھا بھی ہے، اب 40 سال سے وہ حدیثیں پڑھا رہا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہا ہے۔ اگر مولوی نہیں جانتا حقیقت کو تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ہر چیز سے واقف ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن یہ شیطان کے چکر میں آ گیا ہے۔ یہ اب سیدھے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ مردہ نہیں سنتا، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مردہ سنتا ہے۔ اب یہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اور اس کے مقابلے میں ایک حدیث تلاش کرتے ہیں، وہ سند صحیح ہو یا سند ضعیف ہو یا جس طرح کے بھی ہو، یہ رات دن کوشش کر کے ایک ایسی حدیث لے آتے ہیں، ایک ایسی روایت تلاش کرتے ہیں کہ جس سے قرآن کا انکار کر دیا جائے، اور ہمارا جو مسئلہ ہے، ہماری جو فقہ ہے، ہمارا جو فرقہ ہے، وہ سیدھا ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت غلط ہو جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ مردہ سنتا ہے پہلی دلیل۔ یہ لوگ وہ دلیل دے کے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بھائی کو دفن کر لیتے ہو قبر میں، دفن کر کے واپس آتے ہو تو تمہارا وہ بھائی تمہاری جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہو مردہ نہیں سنتا۔ یہ دیکھو، اگر تمہارا مردہ جو کچھ بھی نہیں تھا جوتیوں کی آواز سن سکتا ہے تو اللہ کا ولی ہماری دعا نہیں سن سکتا؟ اور جو ایک سادہ مسلمان ہے وہ تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ تو پکی دلیل آ گئی ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، جب آپ کہتے ہو مردہ نہیں سنتا تو پھر آپ قبرستان میں جاتے ہو اور کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ جب سنتا نہیں ہے تو پھر سلام کیوں کرتے ہو؟ سوال ہے نا، جب وہ سنتا ہی نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ نہیں سنتا ہو، تو پھر قبروں کے بعد جا کے قبرستان میں جا کے سلام، اگر تمہارا سلام سن لیتا ہے تو اللہ کا ولی ہماری دعا نہیں سن سکتا؟ تیسری دلیل، جنگ بدر ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے کافر قتل کر دیے گئے اور مسلمانوں نے انہیں گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اب بتاؤ، میں نہیں کہتا تھا تمہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، سچا رسول ہوں، اور میں جو شریعت لے کے آیا ہوں، میں جو دین لے کے آیا ہوں، یہ دین سچا ہے، اب بتاؤ تمہیں پتہ چلا یا نہیں چلا؟ حالانکہ وہ مرے پڑے تھے، اور صحابہ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، دیگر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر گئے ہیں، اب وہ آپ کی بات کیسے سنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے میرے صحابہ، اب وہ سن بھی رہے گئے، اب وہ میری بات سن رہے گئے، اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب یہ تیسری دلیل ہے، اگر ابو جہل سن سکتا ہے مرنے کے بعد، سوال ہے اگر مرنے کے بعد ابو جہل سن سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں سن سکتا؟ اب یہ 3 حدیثیں، اور ان 3 حدیثوں کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بندہ مر جائے اس کو سنا،
नहीं सकते। और हदीसें कह रही गए, आप सुना रहे गए, आप मुर्दों से बातें कर रहे गए और मुर्दे सुन रहे गए। आप खुद फरमा रहे गए वो जूतियों की आवाज सुनता है। आप खुद कह रहे गए कब्रिस्तान में जब जाया करो कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, सलाम हो रहे गए मुर्दों को। अब ये कुरान की आयत और ये तीनों रिवायात को क्या करते हैं, अब बिल्कुल कुरान के मुखालिफ ले आते हैं। अब यहाँ आके सादे मुसलमानों से एक काम ये करवाते हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ कुरान मानेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, कुरान मानेंगे। ये दूसरे फिरके वाले जो दरबारों के पास जाते हैं वो नहीं, वो दूसरे एक फिरका जो अपने आप को कहते हैं हम मुवाहिद हैं, हमारे अंदर बड़ी तौहीद है, कुछ रबड़ी है और कुछ पतरी है, वो अपने आप को बड़ा मुवाहिद समझते हैं। अब वो यहाँ आके क्या करते हैं कि कुरान मजीद की ये आयत ले लेते हैं और बुखारी शरीफ की तीनों हदीसों का इनकार करा देते हैं और लोगों को भी मजबूर करते हैं कि तुम इन हदीसों का इनकार कर दो, ये कुरान मजीद के खिलाफ आ गई हैं। जो हदीस कुरान के खिलाफ आएगी हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसके मुकाबले में कुरान मजीद को मानेंगे। लेकिन ये तीनों हदीसें कुरान मजीद के खिलाफ नहीं हैं। सिर्फ जब इंसान का कल्ब सलीम हो और दिमाग में हो कि मुझे हिदायत चाहिए, मैंने सिर्फ सिराते मुस्तकीम तलाश करनी है, मैंने कोई फिरका नहीं ज्वाइन करना, मैंने अपने आप को किसी फिरके में शामिल नहीं करना। जिस मेरे बुजुर्ग नौजवान भाई की ये ख्वाहिश हो मुझे हिदायत मिल जाए, सिराते मुस्तकीम मिल जाए, तो उसे ये बात समझ आती है। अगर मैं और आप पहले ही से अपने आप को किसी के साथ ज्वाइन कर लें, किसी फिरके के साथ मिला लें, तो फिर समझो हमारा दिमाग बंद हो गया। अब हम वही सोचेंगे, वही करेंगे जो हमारे फिरके में ठीक होगा। जो हमारे फिरके में ठीक नहीं है वो चाहे कुरान में ठीक भी हो, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं। अब इसकी तशरीह और इसकी वजाहत अल्लाह ताला ने खुद की हुई है कुरान मजीद के अंदर। सूरत का नाम सूरतुल फातिर है और पारा नंबर 22 है। अल्लाह तबारक व तआला ने शाह फरमाया और अल्लाह ताला ने पहले मिसाल दी है। मिसाल क्या है, वमा यस्तविल आमा वल बसीर। ये सूरतुल फातिर है, घर में जाके थोड़ा तर्जमा पढ़ लेना। आयत नंबर 19, 20, 21, 22। वमा यस्तविल आमा वल बसीर। ऐ महबूब आप इनसे थोड़ा पूछो कि वमा यस्तविल आमा वल बसीर, एक बंदे की आंखें हैं और दूसरा अंधा है, ये दोनों बराबर हैं? नहीं। वला ज़ुलुमात वला नूर, एक रोशनी है और दूसरा अंधेरा है, ये दोनों बराबर हैं? नहीं। वला ज़िल्लु वला हरूर, एक साया है और एक धूप है, ये दोनों बराबर हैं? नहीं। फरमाया वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, एक मुर्दा है और दूसरा जिंदा है, ये दोनों बराबर हैं? फैसला बाद में क्या पता बराबर हूं, बोलते नहीं हूं। ये दोनों बराबर हैं? नहीं है बराबर। फिर अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिस मुर्दे को चाहे सुनवा सकता है। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जो बंदा मर के कब्र में दफन हो जाए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसको नहीं सुना सकते। अब उसको सुनाना अल्लाह फरमाता है मेरी से। अल्लाह कहता है मुर्दे को सुनवाना मेरी सिफ्त है, मैं जिस मुर्दे को जब चाहूं सुनवा सकता हूं। लेकिन ऐ मेरे नबी आपके लिए उसूल यही है, आपके लिए कायदा वही है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। आप अगर खुद कहें मैं अपने अब्बा जी को अपना फना पैगाम देना चाहता हूं, अगर आप अपनी अम्मा की कब्र पे चले जाए और उसे जाके कब्र के ऊपर खड़े होकर तसल्लियां दें, जैसे मौलवी आजकल सोशल मीडिया पे करते हैं, कब्र के ऊपर बैठ के कह रहे होते हैं ऐ मेरा भाई अब तुम कहो रब्बी अल्लाह नबी जी मोहम्मद फला, ऊपर से बैठ के ना जवाब दे रहे होते हैं। ऐ महबूब अगर आप अपनी माँ की कब्र पे बैठ के जाके अपनी कोई बात, अपनी कोई गुफ्तगू अगर उससे सुनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए उसूल ये है, आपका कायदा ये है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप नहीं सुना सकते। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जिसको कब्र में दफन कर दिया जाए, अब उसको वक्त का नबी भी 1,24,000 नबियों का नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी नहीं सुना सकते। हाँ, अब अगर इस मुर्दे को
जिंदों की आवाज सुनवानी है तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, वो मैं अल्लाह खुद सुनवाऊंगा। जब हम अपने रिश्तेदार को दफना के वापस आते हैं, हम वो दड़े मारते हैं, जूतियां मारते हैं जोर जोर से, ताकि मेरी जूती की आवाज मेरे अब्बू जी सुन लें कि मैं अब जा रहा हूं। हम में से किसी का यह इरादा होता है अपनी जूतियों की आवाज अपनी मां को सुनाने का? होता है? हमारा यह इरादा होता है जूतियों की आवाज मुद्दे को सुनाने का? होता है? नहीं होता ना भाई। हम अगर जूती की आवाज अब्बा जी को किस लिए सुनाएंगे? डूब के मर ना जाऊं कि बाप के ऊपर खड़े होकर उसको जूतियों की आवाज सुनो, अपनी मां के ऊपर खड़ा होकर उसको जूतियों की आवाज सुनो। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी जूतियों की आवाज मेरी मां को, मेरे बाप को सुनवाई है। क्यों? वो इसलिए कि देख, जिन बच्चों की खातिर, जिस औलाद की खातिर तूने अपनी सारी जिंदगी दाग पे लगा दी है, उनका मुस्तकबिल बनाने के चक्करों में तूने दीन नहीं समझा, शरीयत नहीं समझी, दीन नहीं सीखा, अल्लाह और उसके रसूल की पहचान नहीं सीखी, तूने नमाज और कुरान के करीब नहीं आया है। मैं इसकी दुकान बना लूं, अब इसका प्लाट बना लूं, अब इसका घर बना लूं, अब इसका बिजनेस सीधा कर लूं, और इन्हीं के बिजनेस सीधे करता रहा है। अपने आप को सीधा करके आखिरत की तैयारी तूने नहीं की। अब सुन उनकी जूतियों की आवाज, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आज तेरे साथ आने को तैयार हो। सारे के सारे तुझे छोड़ के जा रहे। सुन उनके जाने की आवाज सुन। और बाकी दूसरी बात, कब्रिस्तान में जाके सलाम करना। कब्रिस्तान में जाके सलाम करने का मकसद ये नहीं होता कि अब मैं मुर्दे को कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, फिर वो वापसी मुझे कहेगा वालेकुम सलाम। इसका मतलब ये है कि मैं कब्रिस्तान में जाके सलाम करूं, मेरा सलाम मुर्दा सुन ले और मुर्दा वापसी जवाब दे और मैं जिंदा ना सुन सकूं, फिर तो मुर्दा मैं हुआ, वो तो ना हुआ। हाँ, कब्रिस्तान में जो जाके दुआ करनी है, सलाम करना है, वो पूरी अगर आप दुआ पढ़े, उसका तर्जमा पढ़े तो पता चल जाएगा। हजूर ने कहा है जब कब्रिस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्रों वालों तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो। मिनल मोमिनीना वल मुस्लिमीना, ऐ मुसलमानों मोमिनो, व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकूना, इंशाअल्लाह हम भी अन करीब यहाँ तुम्हारे साथ आ जाएंगे। अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, मैं अपने लिए भी अफियत की दुआ करता हूँ और तुम कब्र वालों के लिए भी अफियत की दुआ करता हूँ। ये उसी तरह है जिस तरह हम क्या करते हैं, खत लिखते हैं। हम खत लिखते हैं और खत में सबसे पहले हम लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों लिखते हैं? हम ये जिसको खत भेजना चाहते हैं उसको दुआ देते हैं। उसको क्या देते हैं? दुआ देते हैं। ये दुआ है, मुर्दे को सुनाने के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मुखातब करके कहा और फिर फरमाया ये तुमसे ज्यादा समझ रखेगा मेरी बात को, तुमसे ज्यादा ये जान रखेगा मेरी बात को, वो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। वो उसी वक्त के लिए था। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह ताला ने उन काफिरों को आवाज सुनवाई अपने नबी की कि तुम कहते थे नाउज़ बिल्लाह ये झूठा है, तुम कहते थे इसकी शरीयत ठीक नहीं है, अब देख लो हमने उसको गालिब कर दिया है, हमने उसको कामयाब कर दिया है और तुम नामुराद हो गए हो और तुम बिल्कुल झूठे थे और तुम नाहक पे थे और हमेशा बातिल ही मिटता है और जो हक है वो साबित हो जाता है। आज सुन लो अपने कानों से, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आए। पागलों की तरह कब्र पर खड़े हो जाते हैं हम, मट्टी का ढेर है और मट्टी के सामने रो रहा है। इसे इतनी अकल नहीं है कि मैं वुदू करके मस्जिद में आ जा और अल्लाह के सामने रो।